हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेज। आज हम +2 के लिए चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें +2 में विच स्टूडेंट पास्ड 11th क्लास और अप्रोचिंग टू 12th क्लास दे मस्ट watch the video. Okay, now relation and function, in +1 relation and function chapter is there. In that definition, general basic concept behind the relation is given, that okay, on set any a relation with the other set a, same set element associated to each other, related to each other, that is called the relation association of the elements. Maybe all elements of the first set related to all elements of the other set in general way, that, but in the other situation, some specific subsets also maybe only some element associated to the other set according to the given relationship, given relation. In the element, according to the relation, we are making the order pair. We are saying that relation in each element to the other set, one element, each relation as the order pair. Like that. In +1 done. Okay. Now, in +2, what we have to do? In +2, types of relations what are there? Is by relation function and types of relation. We can say types. So what are the types of relations? First you see empty relation and universal relation. Empty का मतलब no element of one set related to another element, another set element, no association, no order pair, empty relation. For example, in the boys school, relation brother sister in the school, then no girl is there, so no sister will be there, so no association will be there, so no order pair will be there. So mean empty relation. This is called empty relation. 5. Every relation is a set also, in +1. So this is empty relation. अच्छा, अब यूनिवर्सल रिलेशन की एग्जांपल। यूनिवर्सल रिलेशन में इस तरह कहा कि लेट अस सपोज इन ए स्कूल, in one class, in a school, in one class, the relation between their heights a comma b, heights of between the students of class a comma b, height, तो like that के a minus b less than 3 meter, a minus b such that a minus b less than 3 meter, condition given according to this difference a minus b less than 3, तो less than 3 आएंगे सब, सारे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट है, ईच स्टूडेंट टू ईच स्टूडेंट डिफरेंस लेस देन 3 आएगा, 3 मीटर डिफरेंस लेस देन 3, ओके, बिकॉज 0 भी हो सकता है डिफरेंस, ऑर्डर पेयर रिवर्स भी हो जाएगी, ईच टू ईच, 2 minus 2 सेम हाइट, 3 minus 2 फीट यानी 1.2 मीटर, 0.8 meter minus that other means that all 0 also may be same height, that also less than 3, so a minus b less than 3 meter, so all order pair possible, so it is universal set.
each element associated to the each element of the other set. Possible that this type of relation is called a universal relation. तो ये दो तो हो गए एक ट्राइबल रिलेशन भी कहते हैं, ट्राइबल रिलेशन कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, ट्राइबल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन बोथ आर ट्राइबल रिलेशन। तो ट्राइबल हो गई, ठीक है, ओके, एब्सोल्युटली हो गई। बट main types of relations are these three relations. First, reflexive, second, symmetric, third, transitive. So what is this first? First का meaning है, what is this? This meaning कि if, understand, if A any element comma A, same element A comma E, if this belongs to R, R is any relation, belongs to R, for every, ये मेन पॉइंट है कि for every A जो हमारा एलिमेंट है वो बिलोंग कर, for every A belongs to set A, understand, set A, and this relation such that set A to set A, set A to set A, this, and every element of set A, here set A, each to each, same element हो तो सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, ओके, फॉर एवरी A belongs to A, so then it is reflexive relation. Second, ये अंडरस्टूड हो गया। सेकेंड, अंडरस्टैंड, सेकेंड, सिमेट्रिक, दिस सेकेंड, सिमेट्रिक, for the symmetric part is there if A comma B belongs to relation R. You know relation is the ordered pair elements set, ordered pairs element set relation. So A comma B अगर कोई इसमें है relation में, this implies B comma A also belongs to relation R. Okay, for every A comma B belongs to set A, understand, ये भी यही है, A to A, ठीक है, A to A पर ही डिफाइंड होने, सेम सेट पर सेम सेट, दूसरा सेट है उसके भी एलिमेंट आ जाए इसी तरह से। तो देन नंबर 3, understand transitive. Transitive means if, here this, if A comma B belongs to R and ये दो ऑर्डर पेयर इस तरह से, एंड जो यहाँ लास्ट एलिमेंट B है वही सेम B हो जाए, B कॉमा कोई और एलिमेंट आ जाए C belongs to relation R, and this implies
यानी इफ लाइक दिस टू ऑर्डर पेयर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा हो आर को, बी कोमा सी, बी सेम एलिमेंट होना चाहिए, या लास्ट सेकंड ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट, सी ए में बी एनी, ओके। तो लाइक दिस इफ बोथ, देन ए कोमा सी जो है ए और सी वो भी उसमें तो implies ए कोमा सी जो है वो भी बिलोंग करें, belongs to R for every A, B, C belongs to set A, जिस पे डिफाइंड है सेट A to A। तो जो A B C हो सेट A में होने चाहिए और इस तरह का ऑर्डर पेयर दो हो, तीसरा भी हो तो देन ओके, अगर तीसरा ना हो तो इट विल नॉट बी ट्रांजिटिव। बट इफ these two are not possible then it is transitive already। मतलब ट्रांजिटिव के लिए ये दो होकर ये फेल हो जाए तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, बट ये दो ही नहीं है तो वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है। और सेकंड में ए कोमा बी है और बी कोमा ए नहीं है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए देन इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये नहीं है। और ये है फॉर एवरी ए कोमा बी के लिए जो ऑर्डर पे ए कोमा बी उसमें है हर एक का रिवर्स हो देन दैट इज सिमेट्रिक। और हियर ए कोमा ए सेम एलिमेंट विद सेम एलिमेंट ए बिलोंग करता है आर को फॉर एवरी ए में जितने भी एलिमेंट हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट के लिए एग्जांपल इफ a equal 1 2 3 if set A is a set of all three elements 1 2 3 एलिमेंट, तो अब अगर मैं ये लिखूं R इक्वल, मैंने लिख दिया 1 1 2 क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी होना चाहिए, तो इट इज नॉट, अंडरस्टैंड, ओके, it is not reflexive till that every A belongs to set A must have A comma A, so means 3 3 must be there, this order pair also must be here, then now it is reflexive, done। सेकेंड एग्जांपल इसी एग्जांपल से दे और a इक्वल टू दे, ओके, लेट्स सेट a इक्वल टू 1 2 3। तो अब कैसे लिखेंगे इसमें, r मस्ट बी इक्वल टू, जैसे आप ये कहें कि यहां पर 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, चलो 1 1 भी है, ओके, फिर मान लीजिए यहाँ 2 1 भी है, क्या ये is this relation symmetric? Asking 1 2 है तो 2 1 रिवर्स है, a b है तो b a है, a b सेम है, तो 1 1 तो फिर 1 1 है तो फिर रिवर्स 1 1 बनता है, वो है ही है, 2 1 है रिवर्स 1 2, डन। यहाँ ये जरूरी नहीं कि एवरी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर a b b a बने, जो a b है उसका b a होना चाहिए रिवर्स, तो इट इज
सिमेट्रिक, यस। और अगर किसी ने यहाँ ये लिख दिया इसके साथ, ध्यान से समझे, 1 3 लिख दिया, अब 3 1 नहीं लिखा, ये तो नो, इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1,3 है इसमें, बट 3,1 यहाँ नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ड्यू टू दैट कि 3,1 इज नॉट हियर। यू कैन गिव द एग्जांपल फॉर proving. I will tell how can write the proof of any given relation, proof of symmetric, transitive and reflexive है या नहीं है। Okay, now अब थर्ड, हाँ जी, थर्ड क्या है आपका? ट्रांजिटिव। थर्ड ट्रांजिटिव की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। इफ A, B बिलोंग्स टू R, फॉर दिस एग्जांपल A, सेट A, मैं ये लिख रहा हूं कि रिलेशन गिवन है 1, 2, 1, 3, 3, 2, क्या ये है ट्रांजिटिव? 1, 2 से कोई और नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। 1, 3, 3, 2, ध्यान दे, 1, 3, A, B, B, A कोई भी है, A, B, C, 1, 3, 3, 2, यस, ये दो हैं, इनसे तीसरा A, C, 1, 2, यस, it is there, so it is transitive। आप चेक कर लो बेटा, देखो आप ये लो, मान लीजिए 1, 3 लेते हो, 3, 2 है, मान लीजिए 3, 2 लेते हो, 3, 2, तो उसका 2 अगर कोई नहीं है तो उसकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव होगा। जिसका दूसरा नहीं है, एक है, A, B है और B, C नहीं है, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, दैट ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है। अगर A, B है, B, C भी है, but A, C is not there, implies not there, A, C not there with these two as the given, then it is not transitive। तो यहाँ पर 1, 3 है, 3, 2 है, 1, 2, A, C yes है, अब 1, 2 है, 2, anything यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। 3, 2 है, फिर 2, anything नहीं है, कोई बात नहीं। 1, 3 है, 3, 2 है, 1, 2 है, यस, डन, इट इज ट्रांजिटिव। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं ट्रांजिटिव इसी के अंदर, अंडरस्टैंड। इस सेट ए पर ही बहुत एग्जांपल आप दे सकते हैं, और इस पर रिफ्लेक्सिव दे सकते हैं, ओनली वन एग्जांपल। फिक्स द सेट for every A must have the A, every A का मतलब A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है, तो everyone A11, 2, 2, 3, 3 must be there, and it is reflexive। अगर यहाँ पर सिर्फ 2, 2 लिख रहे हो, पूछ रहे हो सेट A के रेस्पेक्ट में, so this is not reflexive, understand। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, now I am giving for the test 1 point here। Yes, for set A, this set A equal to 1, 2, 3, A equal to 1, 2, 3, and relation are such that A to A, और इसको मैं भी कह सकते हैं A कार्टेशियन A, ये रिलेशन A कार्टेशियन A, इसको A कार्टेशियन A को भी रिलेशन सेट ही कहते हैं। ओके, this if this
check out the following, which is symmetric, transitive and reflexive, which is not. ओके, अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में मैंने लिखा 1,1 तीनों बताना। सेकेंड, तीनों बताने हैं कि कौन सा है इसमें, ये तीनों में तीनों है या नहीं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, इसमें मैंने लिखा 1 2 2 1 2 2, ये बताना है कौन कौन सा है। थर्ड एग्जांपल मैंने दिया, रिलेशन दिए गए हैं, ठीक है। 2 3 1 3 3 3, ये तीन लिखे मैंने, इन तीनों में बताओ, ये बताओ कौन कौन सा है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है या नहीं, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। ध्यान दो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो बोलो रिफ्लेक्सिव है, नो, फर्स्ट नो, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी। अच्छा ये बताओ सिमेट्रिक है, 1,1 है, रिवर्स 1,1 है, यस नो को मैं क्रॉस कर रहा हूं, नहीं है, ये है, टिक कर दिया, ओके। 1,1 है, रिवर्स 1,1 है, देन ओके। जो यहां ऑर्डर पेयर बना a, b, उसका b, a होना चाहिए बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव 1,1 है, तो बताइए क्या ये ट्रांजिटिव है, यस। ये देखिए ध्यान से, अब सेकेंड 1,2 है, 2,1 है, ध्यान देंगे तो इसमें बताना आप सेकेंड के लिए आंसर यहां देना है। फर्स्ट का आंसर दे चुका मैं, सेकेंड का आंसर रिफ्लेक्सिव बताओ, है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बताओ। 2 2 है, 3 3 भी होना चाहिए था, 1 1 भी होना चाहिए, नो। सिमेट्रिक है, 1,2 है, 2,1 है, 2,2 है, इसका रिवर्स 2,2, यस है, यस। ट्रांजिटिव 1,2 है, 2,1 है, 1,1 नहीं है, 1,1 होना चाहिए, 1,2 2,1, तो 1,1 must be there for the transitive, so it is not transitive, so not transitive, understand। now third example, ये फर्स्ट एग्जांपल का आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया, थर्ड एग्जांपल का आंसर। थर्ड में रिफ्लेक्सिव चेक करो, रिफ्लेक्सिव में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3, बट 3 3 है, तो नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, इज इट सिमेट्रिक, सेकंड वन सिमेट्रिक, 2 3 है, 3 2 नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, 3 3 है, 3 3 है, बट किसी एक का भी फॉल्स हो जाए, 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो नो। अब ट्रांजिटिव देखो, थर्ड ट्रांजिटिव लास्ट वन, 2 3 है, 3 3 है, 2 3 3 3, तो फिर 2 3 AC, यस, ओके। 1 3 है, 3 3, तो 1 3, यस है। अब 3 3 है, तो 3 से कोई और नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, तो इट इज ट्रांजिटिव, डन। Understand this thing. So I have given these 3 examples to check each one relation is reflexive, symmetric or transitive, which is there or which is not there. So I told first example, again I am repeating, reflexive नहीं है, symmetric है, transitive है। Second example, reflexive नहीं है, सिमेट्रिक है,
ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव यस ट्रांजिटिव है। तो लाइक दिस यू शुड कीप इन योर माइंड एंड like, share and subscribe the channel and send the video to the others. Take interest and watch, like, share and send the video to the other contact. They must watch, like, share, guide them and subscribe the channel. Definitely not forget to get the next notification. I am giving the basic things, basic things nowadays, and after some days I will start the exercises questions also. Now I started the second session, next session, sorry, started next session or may start in some school. So you must be careful about that. In my video must watch at the home. You are sitting free, so you take the general basic concept about the chapter, about the concept, basic idea, basic definition. From where it has come, why come, what is this, and how it is come, and from where come, and why come. You see that and watch the video and send the comment in comment box. Thank you.